Hello everyone, this is standard 9 from subject maths and this is lesson number 1 sets. So this is lecture 3 and lecture 1 and lecture 2 are uploaded already, but there are really very minimum views, so please watch them because it's very important. Now we will move to this lecture. So this lecture is just based on 1.3. So no, it's not based on 1.3 actually, it's based on 1.4. So it's mistakenly done by me actually. So then from today's channel by Sakshi Deshmukh. Okay, so let's move on. My first slide is about operations on sets. Okay, so operations on sets what are particularly the operations on sets. So first is there intersection of two sets. So guys, just listen and just know carefully that intersection of sets means if A and B are two sets, the set of all common elements of A and B is called the intersection of set A and B. That is A, and this is the sign of intersection. A intersect B equals to in curly bracket x is in the element A and x is in the x is the element in B. Okay, so here you can know the intersection of two sets means in any set, if there is any set if there are any two sets or more than two and there are some common elements in A and B, so they are known as intersection of sets. Okay, so how will it be? So I'll show you just a minute. So if this is A, okay, sorry, so if this is A and this is B, in A there is 1 and 2 and in B there is just 2. Okay, I'm sorry, it's just 2. So see, here is 2. 2 is common in both the sets, in A also and in B also, right? So 2 is common. See, here is also 2 and here is also 2. So that's why 2 is common in both of the sets. So that's why we can say that these two sets are in intersection. So we can say that it is an intersection of two sets. Okay, now we will clear this and move to our next one topic on with our next slide. Okay, so let's move on. Okay, we had more. So this is the second topic, which is disjoint sets. So it means that sets that are completely different from each other are disjoint sets. So it means कि that which are completely different means क्या होता है डिसजॉइंट सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स दोनों सेट्स में आएंगे वो बिल्कुल ही अलग होंगे, उसमें कोई भी सिमिलरिटीज़ या फिर वो बिल्कुल सेम होंगे ही नहीं, वो डेफिनेटली वो डिफरेंट ही होंगे, इसीलिए हम उसको डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं. तो इफ़ यू सी हियर, सो हियर इज़ गिवन एन एग्जांपल in set A, and set A the elements are 2, 4, 6, 8, and the set B there are elements 1, 3, 5, 7. So you know that these elements are completely different from each other. These elements doesn't match each other, so that's why these both sets are disjoint sets. It's very easy topic. Let's move on. So this is union of two sets. So if A and B are two sets, मतलब अगर A और B दो sets है और then the set of all elements of set and B is called a union of the sets. So देखो, A में कुछ elements होंगे, B में भी कुछ elements होंगे, तो दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे अगर हम एक कर्ली ब्रैकेट में लिख दें तो वो सभी एक सेट में आ जाएंगे और उसे कहते हैं यूनियन ऑफ द सेट. सो हियर इज गिवन एन एग्जांपल. So in this example you may see here that there is set A in which there are some elements like -1, -3, -5 and 0, and in the set B there are some elements 0, 3, 5. So here that is given. So A, and this is not the U sign actually, okay, this is not U, it is the sign of union, A union B. So in a curly bracket all those elements are written like -3, -5, 0, -1 and 3 and 5. So here 0 is taken only once where it's in both the sets. So that's why
we take it as a similar as a common element and write it at once. Okay, now we will move to our next topic. तो अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट. तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इसका, और इसके बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं सेट्स के रिलेटेड. ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट्स में क्या होता है कि इफ़ ए एंड बी, तो देखो मैंने यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एन लिखा है. वो इसलिए लिखा है क्योंकि स्मॉल एन डिनोट करता है नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. ओके, सो इफ़ ए जो है इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें 1 2 3 4 5 मतलब 5 एलिमेंट्स है, और दूसरे इसमें 2 4 6 10 मतलब 5. तो एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए is 5 and number of elements in set B is also 5. So let's consider that number of element of set A and number of element of set B equals to 5 plus 5 equals to 10. यहाँ अरे 10 चाहिए था ना यहाँ पे, so it's 10 not 11. Okay, so अभी मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, तो A यूनियन B मतलब A और B के सारे जो सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक ही इसमें आ जाएंगे. तो 1 2 3 4 5 6 8 10, तो इतने सारे एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं. तो देयरफॉर n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B सेट, तो कितने हैं, 8 हो जाएंगे सभी मिलके. तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड A, और ये इसे कहते हैं कॉमन A कॉमन B. मीन्स कॉमन एलिमेंट अगर हमें ढूंढना है तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा 2 कॉमन एलिमेंट्स है. देखिए इसमें 1 2 3 4 5 है और इसमें 2 4 6 और 10 है. तो 2 और 4 जो है वो दोनों इसमें कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया है 2 और 4, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कॉमन बी सेट तो वो है 2. ठीक है, फिर अभी आगे क्या करना है, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इन ए कॉमन बी आर काउंटेड ट्वाइस, अगर 2 बार काउंट किए जाएंगे तो कैसे होगा. तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कॉमन बी, तो 5 + 5 यानी 10 माइनस 2 यानी 8, तो वो यूनियन ऑफ सेट के बराबर हो जाएगा. तो ये है इसकी प्रॉपर्टी. ठीक है, तो जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते, देखिए ये वाली, ये जो जिसके ऊपर से मैं जा रही हूँ, तो मैं एक मिनट ये वाली है हमारी रियल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो बात ऐसी है, अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा होगा तो फिर मैं वापस से समझा देती हूँ. तो 2 सेट्स हैं, तो हमने क्या किया, उसमें कितने नंबर्स है वो हमने देख लिए, मतलब कि कितने एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं वो दोनों इसके देख लिए, उन दोनों को ऐड कर लिया. ठीक है, फिर उसका यूनियन ऑफ सेट भी निकाला और उसी के साथ उसका कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट भी निकाला. तो ये निकालने के बाद हमने क्या किया है कि जो 2 सेट्स लिए हैं जिसकी एडिशन है, उस एडिशन में से माइनस किया कॉमन एलिमेंट, मतलब 5 + 5 10, ये था हमारा दोनों सेट्स का सम, और इससे माइनस किया हमने कॉमन एलिमेंट्स का नंबर जो कि था 2, तो 10 - 2 आ गया हमारा 8, जो कि है हमारा यूनियन ऑफ सेट का नंबर. तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी हमने इसलिए सीखी है क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें काफ़ी हेल्प करती है. तो अभी हमें वर्ड प्रॉब्लम से सीखना है, तो हम पहले वो सीख लेते हैं. ठीक है, तो चलते हैं आगे की स्लाइड की ओर. तो देखो यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि अभी मैं लेने वाली हूँ. सो पहले मैं पॉज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मैं प्रिपेयर हो जाऊँ और आपको समझूँ. वैसे मैं काफ़ी हद तक प्रिपेयर हूँ और मुझे पूरा समझ में आ चुका है, लेकिन मुझे आपको बताना भी है और मैं काफ़ी देर से बोल रही हूँ, तो आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज, डोंट वरी. ओके गाइज, आई एम बैक नाउ. सो अभी वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट्स. तो पहला वर्ड प्रॉब्लम है, एक ही वर्ड प्रॉब्लम मैं लेने वाली हूँ एग्जाम्पल के तौर पे. तो इसमें है, इन अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स 45 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, 52 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले खो-खो, ऑल द स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट और खो-खो. तो देखो 70 स्टूडेंट्स की क्लास है, उनमें से 45 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 52 को खो-खो खेलना पसंद है. तो आप ऐसा मत कंफ्यूज होना कि 45 और 52 की सम तो ज़्यादा होती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है. लेकिन जो क्रिकेट खेलने वाले हैं उनको हो सकता है उनमें से कुछ जनों को खो-खो भी पसंद है, या फिर जो खो-खो खेल रहे हैं उनमें से ऐसा हो सकता है कि कुछ जनों को क्रिकेट भी पसंद है. लेकिन ये बात क्लियर है कि सभी को कम से कम एक गेम तो पसंद है ही.
ठीक है। तो अभी हमने एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन से मतलब दो मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली मेथड ये है कि हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देखे हमने 70 है, फिर क्रिकेट खेलने वाले 45 है और खो खेलने वाले 52 है। तो अभी हम सबसे पहले इसका यूनियन ऑफ द सेट बना देंगे और इसका यूनियन ऑफ द सेट बना तो और इसमें का कॉमन एलिमेंट भी हमें निकालना है। तो हमने जो प्रॉपर्टी पहले सीखी थी अभी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में, वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे लगानी है और हमारे आंसर ईजीली निकल आएगा। तो देखिए वो प्रॉपर्टी में जो है वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो एक मिनट में जूम करके बताती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो प्रॉपर्टी है वो दी हुई है, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे दी है तो वो हमें अप्लाई करनी है। तो उन्होंने उसी तरह से वो प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो देखो 45 + 52 जो है वो कितना आता है, 45 + 52 आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू मी 50 and 45 मीन्स 95 and 2 97, 97 में से 70 कट करेंगे तो 27 बच जाएगा, राइट। सो 27 यहाँ पे आता है। तो अभी देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो लाइक्स टू प्ले बोथ द गेम्स आर 27 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो लाइक्स टू प्ले खो खो आर 45। So obviously number of students who likes to play only cricket will be 45 - 27 means 18। So हमारा आंसर डायरेक्टली निकल आ गया है जो कि है 18। तो जो यहाँ पे दिया था हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट और खो खो, तो खो खो है 45 और क्रिकेट है 18, ठीक है। तो आपको होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। और अगर बोथ द गेम्स वाले जो है तो 27, ये आपका सिंपल आंसर हो गया। लेकिन अभी हमें देखना है कि दूसरे मेथड से हम इसको कैसे निकाल सकते हैं और वो मेथड है वेन डायग्राम की, राइट। सो वेन डायग्राम की यहाँ पे मेथड जो है वो यहीं पे हाँ, तो यहाँ पे जो है वो मेथड है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन कैन बी शोन बाय वेन डायग्राम्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे उन्होंने x एज अ वेरिएबल लिया है और a उसको दो सेट्स में और 45 - x और x जो है वो दोनों इसमें कॉमन है और b 52 - x। तो इस तरह से वेन डायग्राम से उसे शो किया गया है रिप्रेजेंट। अभी यहाँ पे देखते हैं लेट n a कॉमन b इज इक्वल्स टू x और नंबर ऑफ एलिमेंट्स a इक्वल्स टू 45, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b इक्वल्स टू 52। सो वी नो दैट। तो उन्होंने सेम चीज़ यहीं पे की है, लेकिन पहले जो गिवन था उन्होंने वो वेन डायग्राम से शो किया है। तो सेम थिंग है और आंसर फिर 27 और 18 ही आने वाला है। तो कोई उसमें कोई भी अलग बात नहीं है, वही है मेथड, तो वही है मतलब। लेकिन जो डाटा हम रिप्रेजेंट करते हैं लिख के नहीं, हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो हम और भी ईजिली उसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड, आप बोलोगे अब क्या है, बचा ही क्या है सेट्स में। तो सेट्स का लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर भी एक स्लाइड मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है। तो वो स्लाइड ये है। तो इसमें साइंस जितने भी सेट्स में यूज़ किए गए हैं तो आप इसका एसेस निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको लगे तो लिख भी देती हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं क्या बोल रही हूँ, अगर कोई नहीं भी सुन रहा है तो। ओके, तो अभी बस टेक अ स्क्रीनशॉट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लिएगा। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ पे। एक काम करती हूँ मैं, हाँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साइंस जो यूज हुए तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो साइन है ये इज़ इन द सेट, मतलब वो एलिमेंट सेट में है तो आपको ये साइन यूज़ करना है, अगर नहीं है तो ये साइन यूज़ करना है। फिर ये साइन अपने जब हम रूल मेथड से लिखते हैं कुछ भी चीज़, तो ये आपने देखा होगा, इसे कॉलम कहते हैं, जो कि वर्टिकल लाइन जैसी है, इसे कॉलम कहते हैं। फिर ये साइड एम्प्टी सेट के लिए भी यूज़ की जाती है। फिर ये तो इक्वल्स टू की साइन है, सभी को पता है, इसलिए ये इक्वल सेट के लिए यूज़ की जाती है। ये जो साइन है ये सबसेट की है। फिर ये ए यानी ए ही नहीं, हर बार ए थोड़ी आएगा, सेट का नाम तो चेंज होते ही रहेगा, लेकिन फिर भी ये जो एपिस्ट्रोफी और ये सी जो ऊपर आता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और ये उल्टा यू जैसा, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट।
और सीधा यू मतलब यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो आपको ये इसका स्क्रीनशॉट निकालना है और उसे याद रखना है, क्योंकि सेट्स के बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे साइंस यूज्ड किए रहेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये साइन का मतलब क्या है। अगर आपको साइंस का मतलब ही पता नहीं है तो आप वर्ड प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर अभी आगे चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर स्टडी रिलेटेड 9th standard videos. Okay, so thank you so much, and we will move to the next lesson also from onwards, and please subscribe so you'll get notifications of other videos. Okay, bye guys.